ओके, सभी अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? राइट। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ सर। ओके, लेट मी स्टार्ट। अभी ज्वाइन ही हो रहे हैं वैसे। अटेंडेंस का तुम ध्यान रख रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर, ओके कंप्लीट है। ओके, तो चलो हम इसको करते हैं जरा। मैं क्या कह रहा था, हमने अभी तक ये किया था जो ना ऊपर वाला थ्योरम था, एक तो हमने ये किया फिर से। ओके, हमने किया था x इज रिफ्लेक्सिव, x स्टार इज रिफ्लेक्सिव, किया था ना? अभी हमने किया था रिमार्क में इसका उल्टा भी ट्रू है। Now if x star is reflexive, then x is also reflexive. वजह क्या होगी? Now suppose x star is reflexive. Suppose x star is reflexive and let's show, we have to show that it implies that x star is equal to x triple star, right? Now if x is not reflexive, it would imply that x जो है just a minute, x अगर reflexive नहीं है तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? Then x is a proper subspace of x double star. Just a minute. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? तो इससे पहले मैंने क्या दिखाया था, अगर x रिफ्लेक्सिव है तो x डबल स्टार रिफ्लेक्सिव है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, what I want to show, I want to show that x is reflexive. ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। मैं क्या किया था इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे। How to prove this? This is straightforward है, मुझे याद नहीं आ रहा। Now if x is not reflexive तो उससे क्या होगा, x is a proper subspace of x double star. तो अगर x स्टार रिफ्लेक्सिव है तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अगर x रिफ्लेक्सिव नहीं है तो x का प्रॉपर सबस्पेस ऑफ x डबल स्टार, उससे क्या होगा? वर्स्ट पार्ट ये है कि मैंने इसके बारे में, ये मुझे अभी ख्याल आया। क्या किया था हमने, प्रूव किया था हमने, चलो पहले मैं लिख देता हूँ। We prove that अगर x रिफ्लेक्सिव है तो x स्टार रिफ्लेक्सिव है। हाँ देखो, अभी हमने प्रूव किया x रिफ्लेक्सिव। चलो मैं ये ड्रॉप करता हूँ। Okay, let's see. Okay, if x is now, by above theorem, if x is reflexive, x star is reflexive. So now suppose
X star is reflexive. It implies that X double star is reflexive. And X जो है X what am I missing? मैं miss क्या कर रहा हूँ? I think it should be X has to be a Banach space. Now, if X is a Banach space, मैं क्या कर रहा हूँ? Assume अगर X star reflexive है, तो इसका मतलब X double star reflexive है. तो अगर X double star reflexive है, then X is a closed subspace of a reflexive space X, and hence X is reflexive by second part. अब मैं एक ही चीज लिखना भूल गया था, चलो मैं लिख देता हूँ. Suppose by the above theorem implies that X is reflexive. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, suppose X is a Banach space. इसमें complete होना जरूरी है. अगर X Banach space है और X star reflexive है, तो therefore if X is a Banach space, क्योंकि Banach space का मतलब क्या होगा? देखो X is a Banach space and it is a subspace. It's always a subspace of X double star. तो by the previous theorem, अगर X star reflexive है तो X double star reflexive है, उसका star reflexive, उसका dual reflexive है. अगर ये dual है और X is a subspace और चूंकि ये complete है, Banach space है, तो it must be closed. Every complete and मतलब ये metric spaces में एक result है, subset X of Y of a metric space X is closed if and only if Y is complete. तो हमने बेसिकली ये यूज किया. तो चूंकि X Banach space है, complete है और ये therefore it must be closed and it's a closed subspace of X double star. हमने अभी किया कि a closed subspace of a reflexive space reflexive. Therefore if X is a Banach space and X star is reflexive, it implies that X is reflexive. ऐसे इसको हम कह सकते हैं, जब मैं कह रहा हूँ X is reflexive, it has to be a Banach space. Reflexive space has to be Banach. So, but this is the correct way of doing it. Okay, that was about reflexivity. और मैं reflexivity के बारे में कुछ और कर सकते हैं. Okay. So हमने examples देखी reflexive spaces की, जैसे LP spaces, P greater than 1, finite dimensional space are reflexive. तो मैं थोड़ा, there is a hierarchy जो ये normal linear spaces हैं, उसमें मतलब simplicity, मतलब simple जो spaces हैं, फिर उससे थोड़ा सा complicated, उससे थोड़ा सा बड़ा complicated. तो in general finite dimensional को हम मानेंगे rather simple, मतलब because everything that is linear is automatically continuous. इसके बाद एक और है जो हमने नहीं पढ़ी, तो what we call Hilbert spaces. तो Hilbert spaces भी normal linear space होती हैं, जो हम यूनिट 3rd में पढ़ेंगे. Then इसको contain करती है reflexive space. तो they are all inside normal linear space. तो इसमें एक तरह की hierarchy है, मतलब these are finite dimensional spaces. We can think of that as smaller spaces, simpler spaces. Hilbert spaces slightly more different, slightly मतलब slightly क्या बहुत इस पे एक inner product defined है, but every finite dimensional space is a Hilbert space. So every Hilbert space is a reflexive space. Of course, all of them are normal linear spaces. So that's the hierarchy of what you might call, one thing contained in other, that thing contained in other. So reflexive spaces are important spaces. What I want to emphasize, it categorizes
big chunk, of spaces. तो बेसिकली क्या है ना कि तुम ऐसे सोचो, जो फंक्शंस होती है ना, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस बाय हान-बनाख थ्योरम, तो जैसे हमने किया था corollary to हान-बनाख थ्योरम, फॉर एवरी non-zero x belonging to x, there exists a functional such that f of x is equal to norm x, है ना? ऐसा हमने किया था. तो कहने का मतलब, अब देखो जितने इसमें वेक्टर्स होंगे ना x में, x स्टार में कम से कम उतने एलिमेंट्स तो है ही, है ना? ये बड़ा स्पेस होना चाहिए यूजुअली. तो x डबल स्टार उससे भी बड़ा स्पेस होना चाहिए. तो जब मैं कह रहा हूं x डबल स्टार इज बाइजेक्शन एंड इट प्रिजर्व्स एवरीथिंग विद x, तो यूजुअली होना चाहिए ये, जो ना हमें पता है x शुड बी अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ x डबल स्टार, जो कि हमें पता है बाय कैनोनिकल एम्बेडिंग, है ना? लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ इट इज इक्वल टू x, तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ ये जो डुअल्स इसके हैं ये उतने ज्यादा, मतलब ये छोटे हैं, मतलब देयर आर नॉट दैट मेनी फंक्शंस that are bounded, scalar valued and linear on this space. तो मैं कह रहा हूँ ये छोटे कम है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हान-बनाख थ्योरम हमें गारंटी करता है कि कम से कम उससे बहुत ज्यादा होंगे, जितने एक्सेस हैं x स्टार्स उससे बहुत ज्यादा होंगे. ये कह रहा है नहीं, जब रिफ्लेक्सिव स्पेस हो नहीं, उतने भी ज्यादा नहीं है, वो एक्सेस जितने हैं उतने ही होंगे तकरीबन. तो so it means it's a smaller, more, क्या बोलूं, simpler space in a way. तो so that's what would be, मतलब हम रिफ्लेक्सिव स्पेसेस को कह सकते हैं comparatively simpler or smaller spaces than say non-reflexive spaces. इसके बाद एक और चीज जो हमें पढ़नी है, सेपरेबिलिटी. सेपरेबिलिटी पे तो तुमने बहुत ज्यादा, not separability, that would be not the right word, let me call it separable spaces. Now it is actually totally a topological thing. So what is separable space? Separable topological space तुमने पढ़ा होगा. हेलो, कोई जाग रहा है? सेपरेशन हो जाती है. नहीं, वो तो दूसरा है, इसीलिए मैंने हटा दिया ना. सेपरेबिलिटी है वो, उसके सेपरेशन एक्सियम्स हैं टोपोलॉजी में, है ना? है ना? है ना? वो यू कॉल देम नॉर्मल, रेगुलर एंड हार्ट्रॉप, वो सेपरेबिलिटी के एक्सियम्स हैं 1 2 3. तो लेकिन सेपरेबल हम कहते हैं, अगर तुम्हें टोपोलॉजी मतलब पढ़ा होगा तुमने डेफिनेटली टोपोलॉजी में, a space x is said to be separable. Actually a space as a topological spaces, I should say a topological space as a topological space x is said to be separable if it contains a dense, countable dense subset. Countable dense subset. डेंस का मतलब होता है, तो मतलब चलो तो अगर x है, इसका एक सबसेट ऐसा है such that is countable, यानी इसमें only countably many members हैं, इसको हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को बहुत. एंड एक क्लोजर, अगर मैं इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स लूं, वो पूरे, इसको हम बोलते हैं डेंस होना. यानी अगर एक ऐसा सबसेट हो इसमें जो काउंटेबल है और जिसका क्लोजर हमें पूरी की पूरी स्पेस दे दे, ठीक है ना? तो वी कॉल इट देन x इज डेंस. एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल है सेट ऑफ रियल नंबर्स r इज सेपरेबल. व्हाई? क्योंकि इसमें क्यों एक इसका सबसेट है रैशनल्स, इट्स अ सबसेट ऑफ r, क्लोजर आएगा r, है ना? ऑफ कोर्स q इज काउंटेबल, rationals are countable, and of course q closure is equal to r. If you take all the limits points of the rationals, you get real numbers. Basically that's the definition of real numbers.
ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं हमारी जो नॉर्मल लीनियर स्पेसेस हैं वो मैट्रिक स्पेसेस है ना। हमारी जो ये भी एक तरह का साइज ही बताता है अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ये डेंस सबसेट मतलब काउंटेबल सबसेट से थोड़ा सा बड़े हैं, उनके सारे लिमिट पॉइंट्स ले लो, हमें पूरी की पूरी स्पेस मिल जाएगी। जैसे मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में अभी कह रहा था, तो वो तो बताता है कि डुअल कितना बड़ा है, ये बताता है स्पेस कितनी बड़ी है खुद, क्योंकि एक्चुअली स्पेस जितनी बड़ी होगी उसी पे डिपेंड करता है डुअल कितना बड़ा होगा। बाय दिस बना theorem। तो दोनों आपस में एक तरह से किसी हद तक रिलेटेड है, ऑल्दो दोनों के आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे कैनोनिकल एम्बेडिंग है, यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली हम देखते हैं सेट में अगर कोई काउंटेबल सेट है विच इज डेंस इन एक्स। तो सेपरेबल स्पेसेस में फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस वुड बी आई थिंक बिल्कुल होनी चाहिए, और भी है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस आर सेपरेबल। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट, इट शुड बी इजी। जैसे ही मैं तुम्हें दूसरा दिखाऊंगा ना, जैसे अभी हम करेंगे एलपी इज सेपरेबल, तो जब हम करेंगे एलपी इज सेपरेबल उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा वो प्रूफ करने। बट हाँ, सो एक थ्योरम करते हैं, दिस स्मॉल एलपी एल सब पी is separable and it contains a countable dense set। हाँ, लेकिन यहाँ पे p can be either also 1 and if 1 is less than equal to p is strictly less than infinity। ठीक है, अगर तुम्हें इससे पहले पता हो तो हमने किया था रिफ्लेक्सिव के लिए, वहां पे 1 has to be p has to be less than infinity है ना। लेकिन सेपरेबल L1 is separable but it's not reflexive, तो हम दिखाएंगे this is separable। प्रूफ यानी हमें एक काउंटेबल डेंस सबसेट इसका ढूंढना है। ठीक है, तो व्हाट वी डू, let m be equal to, चलो, all sequences of this form यानी y equal to y1 y2 up to yn, उसके बाद 0 0 0। एक्चुअली अभी इसको बंद करते हैं, चलो कल करेंगे, मुझे थोड़ा सा देखना है। आज इसको बंद करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह कल देखेंगे। सो मुझे थोड़ा सा सर एक मिनट हाँ स्क्रीनशॉट उठाना है। अच्छा करो।